कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो अभी सुबह-सुबह मैं रेडी हो गया हूँ, सब कुछ रेडी कर चुका हूँ, तो फटाफट से चलते हैं जिम। आज है मेरा बैक डे, तो फटाफट से वर्कआउट करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं आज दिन कैसा रहता है। Start. Sure. Oh. Sure. Huh? Azul Sure.
गाना बढ़िया भाई, स्टेप हो जाए स्टेप। बस हो गया। वाह क्या बात है, क्या बात है। बस Yo. Ready, let's go. Feel that fire, feel that beat. I step in the gym, heart pumping, lights flicker overhead. Shaking off the stress, letting go the heavy in my head. Every rep, every drop of sweat's a promise I've been bred to push harder, dig deeper, chase that voice I've heard. Weight on my shoulders, yeah, but I don't let it weigh me down. I turn that low to drive, use that grit to own this ground. You feel me? It's more than muscles, it's will, it's soul. When you sweat out doubt, you redefine your role. Coach said digging, so I grind till my bones wanna give up, but that's where growth lives. Yeah, right at the edge of the tough stuff. I'm speaking simple truth, you gotta bleed to rebuild. Every drop on the floor is proof of the fire in your will. Sweat and steel, heartbeat sync to the rhythm of the fight. In that mirror, I see someone chasing limitless heights. So take that pain, flip it, let it ignite your soul. Transform your work act, make your spirit the goal. When your legs burn and your mind screams quit, you breathe in deep, embrace it, don't sit. That's the moment where your legend's lit. You ain't just lifting weight, you're lifting grit. Transform your workout, let your fire rise. Feel that spark in your chest, see a light in your eyes. Every rep, every breath, every beat you make, build your strength inside, yeah, make no mistake. This is more than a gym, this is where you become brand new. Transform your workout, yeah, we trust in you. I've seen doubters turn believers with just a single set. When you push past your limits, you ain't done hitting yet. Building hope, not just muscle, feel that mental weight shift. Every ache in your body's a gift, you hear that inner uplift. We're talking real talk, sweat drips, mind flips, you stand tall. Sweat stained tank, pounding chest, you feeling 10 feet tall. And yeah, it's gritty, it's raw, but it's the sweetest sound. Your heartbeat anthem, your soul pounding on solid ground. So channel that energy, let the movement be your voice. No excuses, no hold, today you make that choice. You rise with every lift, you get stronger each mile. Make that pain worthwhile, make that struggle your style. Know this every drop of sweat is a story in your veins. Of early mornings, late nights, of conquering personal change. You're not just transforming your shape, you're transforming your mind. One rep at a time, leave the doubt far behind. When your breath's ragged and your soul says stay down, you dig deeper on that moment, claim your crown. This is more than exercise, this is how legends rise. Transform your workout, truth in your eyes. Transform your workout, let your fire rise. Feel that spark in your chest, see it light in your eyes. Every rep, every breath, every beat you make, build your strength inside, yeah, make no mistake. This is more than a gym, this is where you become brand new. Transform your workout, yeah, we trust in you. Feel that? Burn in your chest, yeah. Transform, transform. Work that way. One more rep, one more rep, more step, keep it moving. You're closer than you think, hold that pace, keep that faith. Every drop of sweat, write your story, leave no space for hate. You're leaving doubt behind with every rise, every push. This journey's yours, own it, let that spirit good. Transform your workout, let your fire rise. Feel that spark in your chest, see a light in your eyes. Every rep, every. सो भाई कल भी सेम टाइम पे बारिश हुई थी और आज भी उसी सेम टाइम पे बारिश हो रही है। तो कल तो मैं नहीं नहाया था तबीयत के चक्कर में। अभी ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो रही, लेकिन अगर तेज़ होगी तो आज मैं नहाऊंगा, ठीक है। और आज मैं पूरा ट्राईपॉड वगैरह लगा के सिनेमैटिक शॉट्स भी शूट करूँगा, लेकिन बारिश पहले तेज़ होंगी तब, क्योंकि ये हल्की फुल्की थी बारिश में, मज़ा नहीं आने वाला भाई। देखता हूँ क्या करूँगा भाई। बड़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ, ट्राईपॉड तो लग नहीं रहा है। मतलब ट्राईपॉड लग जा रहा है तो छाता नहीं लग रहा है, और बारिश में भीगते वैसे ट्राईपॉड नहीं छोड़ सकता ना, ख़राब हो जाएगा। तो लगता है कैंसिल ही करना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, मैंने ट्राई किया, एटलीस्ट आई ट्राइड।
चलते हैं नीचे फिर। So I really wanted to share an experience with you guys because it has a really important message in it at the end. तो मैंने सोचा कि मुझे शेयर करना चाहिए। इट हैपन टू मी एन आवर अगो, ठीक है, तो एकदम ताज़ा ताज़ा बात है भाई। तो हुआ क्या कि मैं ना अपनी दीदी को लेके हम लोग टू व्हीलर पे थे, स्कूटी पे थे। तो मैं मतलब आई वॉज कमिंग बैक होम। सो व्हाट हैपेंड इज़, एक बहुत ऐसी नैरो सी रोड थी एंड आई हैड टू टेक अ राइट टर्न एंड सडनली आई फॉरगॉट टू टर्न ऑन द इंडिकेटर्स। तो हुआ क्या, उस नैरो रोड पे जैसे आई वाज टेकिंग अ राइट टर्न, सो एक बाइक वाला आता है एंड ही नियरली गॉट इनटू अस। आई मीन वो बस लड़ते लड़ते बचा। तो आई लुक्ड एट हिम एंड ही वाज लाइक, ही येल्ड एट मी, चिल्लाते हुए बोलता है कि दिखाई नहीं दे रहा है क्या एंड ऑल्सो। भाई ठीक है, मेरी गलती थी। तो आई वाज लाइक, ऐसे आई सेड भैया भैया लगी तो नहीं? तो ही सेड कि लगी नहीं क्या यार, देख के चलना चाहिए, ये वो खूब तेज। मतलब मैं तो नॉर्मली बोल रहा हूँ लेकिन ही वॉज येलिंग कॉन्टीन्यूसली, पूरा टाइम वो चिल्ला रहा था, ठीक है। तो आई सेड भैया लगी तो नहीं? तो कहता कि देख के चलना चाहिए तुमको, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। तो आई सेड अरे भैया ध्यान नहीं दिया मैंने, मतलब सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर चिल्ला रहा है, फिर चिल्ला रहा है। सो वेयर वाज आई, हाँ ही वाज कंटिन्यूअसली येलिंग एट मी एंड आई वाज लाइक ठीक है भैया कोई बात नहीं। मतलब मैं देखो प्रॉपर मान रहा था कि मेरी गलती है, मेरी गलती है। एंड आई वाज लाइक ठीक है भैया, लगी नहीं, कोई नहीं भैया, ठीक है ठीक है ठीक है, पूरे टाइम पे। बट वाइल ही वॉज लिविंग, उसने मेरी स्कूटी का जो हेडलाइट था उस पर ऐसे हाथ मारा बहुत तेज एंड ही सेड ढंग से नहीं चलना आता, ऐसा करके। तो भाई मेरे साथ मेरी दीदी थी, ठीक है। तो आई वाज लाइक, जब ये हुआ तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा ठीक है ज़्यादा हो रहा है भैया, निकलो अब, हो गया बहुत हो गया। तो मेरे से कहता कि ज़्यादा हो गया, मैं यहीं जेप्टो में काम करता हूँ, कोई दिक्कत हो तो आके मिल लेना। तो मैंने बोला कि मतलब मैंने उस टाइम ज़्यादा सोचा नहीं। तो मैंने बस उससे बोला, मैंने कहा हाँ हाँ तुम बहुत बड़े बदमाश हो, चलो ठीक है निकलो निकलो। बट जाते जाते भाई वो मेरे को एक गाली दे के गया, ठीक है। जैसे ही वो मेरे को गाली दिया, वो थोड़ा सा आगे बढ़ा। आई सॉ कि दो तरफ से, क्योंकि वो चौराहा टाइप का ही था, छोटा सा गली में, कॉलोनी में चौराहा टाइप का था वो। एंड आई सॉ कि दो साइड से तीन चार लोग और आ गए। तो मतलब फिर ऐसा था कि मुझे ये पता चल गया मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कि हाँ ठीक है अभी और लोग भी हैं, और उसने मेरे को गाली दिया था। तो आई रेज्ड माई वॉइस, आई येल्ड। मैंने उससे कहा, मैंने कहा इधर आ इधर आ इधर आ। एंड मतलब मैं थोड़ा उसके ऊपर अग्रेशन से चढ़ा और मैंने उसका कॉलर पकड़ा, ठीक है। एंड गेस व्हाट भाई, ही स्टार्टेड बैकिंग आउट। मतलब उसकी हालत एकदम टाइट हो गई, उसका पूरा मीटर डाउन जाने लगा, ठीक है। जैसे ही मैंने उसका कॉलर पकड़ा, मैंने कहा गाली कैसे दिया तूने? ही वॉज लाइक भैया आप बताइए गलती किसकी थी, आप ऐसे बोल रहे हैं ये वो। मैंने कहा गलती गई भाड़ में भाई, तूने गाली कैसे दी मेरे को ये बता। भाई लिटरली बता रहा हूँ, भैया भैया पे आ गया ऐसे ऐसे करके। मतलब उसके रिएक्शन से पता लगने लग गया कि वो डर चुका है, ठीक है। और उसके बाद फिर भैया, मतलब जो अगल बगल के लोग थे वो भैया लोग आ गए और बीच बचाव करने लगे, भाई आ जाते हैं वैसे लोग। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने कहा तूने गाली कैसे दी, तूने गाली कैसे दी? भाई एंड में मैं तुमको बताऊँ कि जो बंदा स्टार्टिंग से इतना ज़्यादा चिल्ला रहा था, इतना ज़्यादा शेर बन रहा था, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ठीक है भैया गलती होगी, जाने दीजिए जाने दीजिए। एंड में जब मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया तो वो बंदा भाई लिटरली कॉलर छुड़ा के ना भागा है वहाँ से, ठीक है। अब इसमें ये नहीं कह रहा मैं खुद को कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब शेर हूँ या ऐसे ऐसे टाइप की चीज़ें। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई जो काइंडनेस दिखाने का जो एक वो होता है ना, मतलब अगर मैं चाहता तो मैं स्टार्टिंग से ही उसको ऐसे अपनी गलती नहीं मानता, मैं स्टार्टिंग से ही लड़ सकता था उससे, ठीक है। क्योंकि ये करते हैं लोग, कोई अपनी गलती नहीं मानता है रोड पे, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से उससे लड़ सकता था, लेकिन मैंने काइंडनेस चूज़ की और मैं उससे स्टार्टिंग से ही कह रहा हूँ कि भाई ठीक है लेट इट गो लेट इट गो। बट ही वॉज लाइक नहीं मैं चढ़ता जाऊँगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज आई वॉज काइंड, तो वो मेरे को जाने नहीं देना चाह रहा था। वो चढ़ते जा रहा चढ़ते जा रहा चढ़ते जा रहा, और एक सेकंड सिर्फ मैंने एक चीज़ करी, मैं गाड़ी से उतर के उसका कॉलर पकड़ा जाके, ठीक है। और इसी एक चीज़ में उसका पूरा भाई पर्सनैलिटी चेंज, भैया भैया बताइए आप बताइए गलती किसकी थी, उसके बाद भाग गया। तो ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है कि जैसे मैं रोड पे जा रहा हूँ, ठीक है। और ऐसा नहीं कि किसी बाइक वाले से ही हो गया और वैसी चीज़ें नहीं, मेरे साथ कार वगैरह वालों के साथ भी ये चीज़ें हुई हैं कि जैसे मैं कहीं भी जा रहा हूँ रोड पे, चीज़ें हो जाती भाई छोटी-छोटी। तो जैसे कोई मेरे से जैसे किसी ने शीशा नीचे किया, उसने कुछ बोला तो आई वाज़ लाइक अरे ठीक है भैया ऐसे, एक लाइन ऐसे बोलूँगा। तो जैसे ही मैं किसी से ऐसे लाइन बोलता हूँ, सामने वाला चढ़ता है। और सेकंड में जैसे ही मैं अपनी स्प्लिट पर्सनैलिटी करने की वो करता हूँ कि मतलब जैसे ही मैं वापस उसके ऊपर चढ़ने लगता हूँ कि फालतू क्या बोल रहे हो इतना ये वो, भाई सामने वाला बैक ऑफ करने लगता है।
तो आई होप तुम लोगों के साथ भी ये चीज़ें होती होंगी। तो मैं कह रहा था कि एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, तो इसमें इंपॉर्टेंट मैसेज ये है भाई कि यू शुड बी केपेबल ऑफ वायलेंस। आई मीन इफ़ नॉट वायलेंस देन यू शुड बी केपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग योर लव्ड वंस, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑब्वियस है भाई, मेरे साथ मेरी दीदी थी तो मुझे वायलेंट तो नहीं होना था, लेकिन इतना केपेबल मुझे होना है हमेशा कि मैं अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट कर सकूं, ठीक है। यही मेरा मैसेज है आप लोगों को भी कि बी केपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग योर लव्ड वंस, ठीक है। अगर आप ही वो रहोगे, वीक रहोगे, तो भाई क्या ही, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस कभी भी कहीं भी बन सकती हैं, ठीक है। तो बी केपेबल, और केपेबल होने का मतलब ये नहीं है कि तुम फ्रंट से जाके किसी से लड़ो, या मतलब पहली दूसरी इंस्टेंस में ही किसी से लड़ने लग जाओ कि आ जाओ भाई देख लूँगा तुझे मैं, ये वो नहीं। अगर तुम्हारे पास अगर ऑप्शन है और तुम अपने किसी लव्ड वंस के साथ हो, चाहे फैमिली फ्रेंड्स कोई भी है, तो उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करते हुए वायलेंस को इग्नोर करो, अवॉइड करो जितना हो सके। लेकिन अगर होती है वायलेंस तो यू शुड बी केपेबल, ठीक है। इतना केपेबल आपको होना है कि आप सामने वाले को मतलब ऊपर से नीचे उसको डरा के वो करा पाओ, या तो फिर ज़रूरत पड़े तो पीट पाट भी पाओ। भाई देखो ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ें बहुत हुई हैं। एंड मैंने ये चीज़ अब पूरा प्रॉपर नोट करके रखी है कि अगर आप काइंड रहते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी काइंडनेस को यूज़ किया जाता है। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं आज भी डिलीवरी वालों को जो टैक्सी वाले होते हैं मैं उनसे बहुत काइंडली बिहेव करने का ट्राई करता हूँ। लेकिन एक और चीज़ है इसी में, ज़्यादातर टैक्सी और डिलीवरी वाले जो होते हैं वो काइंडनेस के लायक नहीं होते। क्यों नहीं होते मैं बताता हूँ। अभी जैसे मैंने अभी तुमको 1 घंटे पहले वाला जो इंसिडेंट बताया वो डिलीवरी वाला ही था। मैं उससे नॉर्मली बात कर रहा हूँ तो वो मेरे पे चढ़ा जा रहा है, चढ़ा जा रहा है। ऐसे ही होता ही है, ज़्यादातर ऐसे ही होता है, ठीक है। लेकिन एट फर्स्ट भाई सबसे काइंड रहो, लेकिन कोई अगर तुम्हारी काइंडनेस को मिसयूज़ करे तो उसको फिर ये भी बताओ कि भाई काइंडनेस इज़ नॉट अ वीकनेस, ठीक है। दैट वाज़ माई मैसेज फॉर यू ऑल। सो बी केपेबल, प्रोटेक्ट योर लव्ड वंस एंड बी सेफ, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं आज के अपने ब्लॉग को यहीं पे, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखो, बाय बाय।